इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone. We welcome you to 189th episode of Business Opportunity Over Chai webinar series. Franchise India is Asia's largest integrated franchise solution company, and we have helped thousands of investors in getting the right business from us. We have helped numerous organizations internationally and nationally in their business expansion. We welcome management team of Franchise India for this particular webinar. We welcome Gaurav sir as well as Sonia ma'am. The brand which we are presenting today is Pan Guys. It's the oldest pan brand in India. They started their journey in 1965. And today we'll be talking about their brand and their complete journey. We apologize, Pratik is about to join. He's facing some problem, but by that time, we'll invite our senior consultant Varun to talk about this brand. Over to you, Varun. Yes, hi, good morning, everyone. Good afternoon, everyone. So today we are discussing Pan Guys, and as mentioned by Archana, that Pan Guys is one of the oldest pan serving company of India, which got established in 1965. So apart from Pan Guys was looking to expand their wings, and they started introducing charts as well as North Indian food to help the business grow. So while approaching Franchise India, they expected us to create models for their chart as well as their QSR models, which were combined along with the PAN models. Yes. So as mentioned, the founder, Mr. Bhagwan Das Tikmani ji, was the founder of Pan Guys in the year 1965. They are specializing in pan and F&Bs. Next slide, Archana. So the vision is to, there's a vision and mission statement. The vision is to capture all the small time vendors under one umbrella and ensure a high visibility and a bigger brand name to deliver. And the vision and the mission statement is to is to deliver the passion, providing best taste and highest hygiene and quality to all the customers. So as mentioned, it is the oldest pan brand of India, which was established in 1965. It has national and international presence. They are also, in talks with
expanding in Dubai market as well. And celebrities like Ambani, Bachchans, Munjals have been their regular clientele. So the unique selling propositions are the freshly prepared pan and snacks, which are regularly available at their outlets. So the pan that is available is also, pocket friendly, so that this is not very, costly to the investor. It is a reputed and trusted brand. There are a lot of varieties of pans that are available under one umbrella. And I also welcome Mr. Pratik Tikmani ji since he has joined. Hi Pratik ji, can you hear me please? Mr. Yash Tikmani ji and Mr. Pratik Tikmani ji. You need to unmute yourself, yes. Hi, can you guys hear us? Yes, we can hear you. Hi. So we are live on the webinar, sir, and currently the presentation is going on. And I would request you, if you can continue with the presentation here with the unique selling proposition. I hope you can see the presentation, sir. I can take it forward. Thank you so much. So, so right now we want to speak about the unique selling point about our brand. As we know, people do prefer to have, everything which is freshly prepared these days, and it's all hygienic. So that's one of our USP here, and it's it has it's pocket friendly. It's not that expensive. Everyone can afford it very easily. It's a reputed brand. We don't think that there is any other brands which has sort of the same goodwill when it comes to this particular line of business. And yeah, can you just change the slide for me, please? So these are the snapshots of our GK1 location, which, as you can see, people are just loving it, and it's mostly this crowded all the time. Can we change it to the other slide, please? So this is the menu that we started with. This is a classic menu basically, because it started in almost like in late 1960s and like 70s, and like we've been carrying most of the menu like that, just to give that a very classic feel. Can we change to the next slide, please? Yeah, so here we would want to talk about how the market scenario for mouth fresheners as well. So we do package a lot of mouth fresheners under our own brand name, which is also something that is very unique to us, and they do sell. I mean, people do even like to take those things abroad with them, if it's packed properly. So this is where we talk about the market, the whole market in terms of the mouth freshener. It's if you look at the numbers, they're huge, and yeah, especially when it comes to ours, the quality is assured. Can we switch to the other slide, please? Yeah, so this is the trend of the consumption of how it is, and as you can see, it has been clearly going upwards. Yeah, please. And yeah, thank you. Can you move to the other slide, please?
Can we move to the other slide, please? It's just we talking about the market now. Let's talk about the commercials when related to our brand. So we are giving away. So there are a few other brands as well, which comes under the umbrella of Prince Pan, which I would like to get your notice. Two is first is Prince Pan that we are offering. Then the other one is Prince Chart, which also happens to be a very clean and hygienic street food brand. Then the other one I would like to talk about is Pan Guys. That's like an upmarket, very modern kind of a brand, which it has a very modern menu to it. And the other one would be extra chutney. That's North Indian food, Mughlai food, which really complements pan at the end. As something that can go really well. So our commercial starts from like if in terms of area required from 150 square feet, which is so it's something that we don't need a lot of space with just to start. And when we look at the approximate investment, it just starts from 15 lakhs and it goes up to 35 lakhs depending on how and what are the permutation and combinations you can have. Uh, Franchise fees are also mentioned in the whole table. Average payback period, as you can see, is something that can be achieved. We do feel that it can be achieved around this time or a little earlier than that, depending on how the market is. Um, yeah, can you move to the other slide, please? Thank you so much for listening to us. We will love to have to answer the questions now. Thank you, Prateek. Welcome, Tekwani ji. So we start with giving a little bit, because a lot of people have joined in on our Facebook and also on our webinar. So if you can give a little journey, because I think when we were waiting for you, I think Varun started giving a presentation and he didn't set the base. So I would like that if you can stay where the journey really started, because people should know the legacy of the brand, how it has, and especially we all know your Prince Pan, legacy and how it really started. And then we go deeper into the other piece. So Tekwani ji, आप कुछ बताना चाहें brand कैसे शुरू हुआ? मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1965 में। पार्टीशन टाइम में एज ए रेफ्यूजी आए थे यहाँ पे इंडिया में, और एक सिंगल पैनी भी वहाँ से लेके नहीं आए थे। बिल्कुल यहाँ आके पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत की, इवन कूली भी बने, स्ट्रीट फूड में पकौड़ियाँ बेची, गाड़ियों में ट्रेनों में सामान बेचा। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया 1947 में आके। तो फाइनली 60s में उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया दरियागंज में जी। उसके बाद जैसे फैमिली बढ़ी तो मेरे फादर जीके आ गए, तो वो दरियागंज वाले भाई वहाँ रह गए। फिर जीके से मतलब समझो 65 से हमने स्टार्ट किया है, और आज 2020 ऑलमोस्ट 55 ईयर्स हो गए हैं। और इस 55 साल के अंदर आप समझो उन्होंने मेरी 4 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई कराना, उनकी शादी कराना, सारी जिम्मेदारी उन्होंने निकाली। और समझो पहले झुग्गी में रहते थे, आज परमात्मा की दया से अपना घर अच्छी पौष कॉलोनी में सब घर मकान सब उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। ठीक है। और जो ब्रांड हमारा है ये बेसिकली क्वालिटी इतना कॉन्शियस है कि जो पान अभी हम दे रहे हैं वैसा पान कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारा ये पान ऐसा है कि जो खाने से मुंह लाल नहीं होता। अदरवाइज आप किसी का भी पान खाते हैं, देखते हो आप लोग रास्ते में खाते हैं तो पीक करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। हमारे पान से ना पीक आएगी ना मुंह लाल होगा, एकदम डिजॉल्व हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा मैंने पान का है, सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू मुंह में रह जाएगी, जैसे गित्तर की स्मेल आ जाती है आपके पास, तो ऐसी रह जाएगी। और जितनी भी हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं, जो भी हैं, या चाहे फिल्म स्टार्स हों चाहे बड़े लोग हों, वो सिर्फ हमारा ही पान खाना पसंद करते हैं। और हमने इन सबकी शादियों में, इनके फंक्शंस में रेगुलरली हमने काम किया है। मानीज में भी हम लोग गए हैं, एस्कॉर्ट्स में गए हैं, कपूर्स में, जितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं सब हमें शादी में बुलाते हैं, फंक्शन बुलाते हैं। उनकी छोटी छोटी पार्टी में हमसे वो पान मंगवाते हैं।
तो यही हमने सिर्फ कमाया है इसमें, इस बीच में और कुछ नहीं कमाया जी। नहीं, बहुत कुछ कमाया है और ये बहुत बड़ी इज्जत है और मुझे लगता है कि हम सब, मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर हूँ और इतने सालों से, तो इसमें कोई वो नहीं। और यार जो सर्विस लेवल है, सिर्फ प्रोडक्ट ही ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक सर्विस और उसकी एक कस्टमर का एक वो करना, और इतने सालों और से फैमिली। अभी हमने रिसेंटली ही चार्ट का एक फ्रेंचाइज आउटलेट रिसेंटली खोला है, ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही, न्यू फ्रेंड्स हाँ जी। कॉलोनी के अंदर। तो वो भी अगर आप कोई विजिट करना चाहे देख सकते हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी वो ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, यही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सक्सेस फ्रेंचाइज इंडिया ने देखी। लॉकडाउन में बहुत कम कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने रेजिलियंस दिखाया और जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, और वो आपकी जैसी थी, तभी हम इस रिक्वेस्ट के आपको रिक्वेस्ट किया यहाँ पे आने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्योंकि ये लेगेसी ब्रांड अपना प्रिंस पान है जो GK1 में है। अगर कोई भी जानता है साउथ दिल्ली को, और दिल्ली वैसे ही मशहूर था पान के लिए, लेकिन उसके ऊपर से भी सबसे ज्यादा मशहूर जो पॉइंट है, कोई इसको ब्रांड कर पाया, बिकॉज पान तो बहुत जगह मिलता है इंडिया के अंदर, लेकिन ब्रांडेड मिलना बहुत मुश्किल है। और वो एक बहुत बड़ी लेगेसी थी कि ये ब्रांड कैसे आप बनता है और लोग उसकी प्रेफरेंस बनाते हैं और उसी में ही जाते हैं। तो आज ये प्रेफरेंस है। Another thing which I should say is that they are one of the largest aggregator of raw material, क्योंकि इसमें अच्छा रॉ मटेरियल लाना और सोर्स करना भी एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पान इज आउटकम, इज असेंबली लाइन प्रोडक्ट। जैसे आप मैकडॉनल्ड में जाते हो तो असेंबली लाइन होता है कि एक चीज जोड़ के सब करा के हम देते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसके पीछे होती है सोर्सिंग की। क्या सोर्स करते हैं आप, क्योंकि आगे वाला फॉर्मेट तो बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपकी सोर्सिंग है। तो अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बताना चाहें सोर्सिंग के बारे में, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्या रॉ मटेरियल होता है और वो रॉ मटेरियल कैसे सोर्स किया जाता है। तो ऐसे है जी, इसमें जो भी चीज होती है, पत्ता जो होता है वही पत्ता जो है, जो नॉर्मल दूसरे पान वाले हैं जो ना टैक्स पे कर रहे हैं, ना जिनका ना ब्रांड है ना कोई स्टैंडर्ड है, वो या जिनका पान कुल 10 रुपए का बिक रहा है, तो वो तो नेचुरली कोई 2 रुपए का 5 रुपए पत्ता तो लगा नहीं पाएंगे। वो तो 8 आने का 1 रुपए का जो पाकिस्तानी पत्ता जाता है सस्ते वाला, वो यूज करते हैं। ठीक है, हम बेस्ट पत्ता मंगवाते हैं ताकि जो जिसमें जिसका जिसका मोटापन भी ठीक हो, करारापन भी जिसमें पान के अंदर ठीक हो, वो चीज़ हम खुद सोर्स करते हैं। वो हमारे स्पेशल ऑर्डर ही आता है, मिलता उस मंडी में ही है, वही व्यापारी मंगवाते हैं। पर हम उनको फोन देते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि उस क्वालिटी का पान हर बंदा ले नहीं पाता, क्योंकि उनको उस रेट में बिकता नहीं पान। ठीक है, रही कत्थे की बात, कत्था भी जो हम पकाते हैं, हमारा कत्था पकाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो रेसिपी तो मैं खैर नहीं बता पाऊंगा आपको, पर वो ऐसा है कि जो हम नॉर्मली वो लोग कत्था नहीं पकाते जैसे हम पकाते हैं। चूना भी हम अपना बनाते हैं, ज्यादातर पान वाले इस टाइम चूना रेडीमेड ही पैकेट लेके यूज कर लेते हैं, जिससे मुंह कट जाता है। हम चूना अपना खुद पकाते हैं। गुलकंद है, गुलकंद भी हम खुद बनाते हैं, क्योंकि गुलकंद में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो हर एक को नहीं पता। वरना वो लोग बनाते हैं तो बिल्कुल तरी सी हो जाती है, हमारे बिल्कुल तो टाइट सी रहती है। तो वो भी एक हमारी अपनी रेसिपी है। ठीक है, सुपारी भी जो हम यूज करते हैं, उसको कितने देर भिगो के रखना है। अगर सुपारी को भी आप ज्यादा देर भिगो के रखेंगे और जब उसको पानी में खाएंगे तो उस सुपारी खाते हैं को चक्कर भी आ जाएंगे। अगर वो गलत टाइम भिगा हुआ है, वो एकदम नशे का काम करेगी, आप एकदम चक्कर का गिर जाएंगे। तो हमें पता है कितनी देर हमें उसको भिगो रखना है, कितनी बार उसको वॉश करना है। 12 से 13 बार सुपारी को धोया जाता है। लोग क्या करते हैं, सुपारी भिगो रखते हैं, उसका नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं, उसका बार बार पानी बदलना पड़ता है। ये लोगों को नहीं पता, लोग सोचते हैं ठीक है सुपारी भिगो दी, गीली होगी, चल गई। तो ये सब चीजें हैं जिसकी जगह हम ध्यान देते हैं। और इसके अंदर अब बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स। अब प्रतीक, आई विल लाइक यू टू आल्सो कम इन, कि हमने बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाए। एक तो अपना आइकॉनिक ब्रांड है जो प्रिंस पान है, जो मुझे लगता है कि बहुत स्केलेबल अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के किसी कोने में आप जा सकते हैं। कल मैं ड्राइव थ्रू कर रहा था पूरा, इससे आगरा ग्वालियर तक मैं गया, तो मैं देख रहा था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो वो हर एक छोटे सिटीज के अंदर, कई रास्ते में आए, क्योंकि 400 किलोमीटर की जर्नी है। तो आई वुड थिंक दैट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जो हर जगह मिले। और मैं, क्योंकि आपका कल वेबिनार आ रहा था, मैंने देखा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं हर जगह खोल सकता हूँ। बाकी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कई के अंदर अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जो आप हर जगह लेके जा सकें, क्योंकि वो, और हिंदुस्तान की सक्सेस और स्ट्रेंथ भी वही है कि हम वेरी वेरी डाइवर्स एज अ कंट्री। एंड पान एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह ले जा सकते हैं, चाट एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह ले जा सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस मॉडल की बहुत ज्यादा है। तो और उसमें आपने अलग अलग फॉर्मेट बनाए हैं, तो अगर हम उस एक एक फॉर्मेट के ऊपर जाएं थोड़ा डिटेल करने के लिए, आप एक्सप्लेन करना चाहो, स्पेशली पान गाइस इज योर थॉट प्रोसेस। सो क्या पान गाइस का थॉट प्रोसेस था कि कैसे हमने प्रिंस पान जो ट्रेडिशनल है उससे हमने पान गाइस को इवॉल्व किया, पान गाइस की ऑडियंस कहाँ है, फॉर्मेट हम कहाँ देखना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, नॉन शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, किन एरियाज के अंदर हम पान गाइस को कर सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एक्स्ट्रा चटनी, वो कॉन्सेप्ट क्या है। और फिर हम इसके बाद थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे कि हमारा जो बिजनेस होता है, जैसे प्रिंस पान अगर मैं खोलता हूँ और चाट खोलता हूँ, तो इसमें दो बिजनेसेस हैं।
एक तो मेरा रिटेल बिजनेस है कि कस्टमर मेरे पास आएगा जो लेके जाएगा या टेक अवे करेगा या डिलीवरी मंगाएगा। दूसरा मेरा केटरिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके ऊपर भी आप अगर डालना चाहें कि जो मैरिजेस के अंदर लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलरली दे वुड लाइक टू हैव यू। Sure. So, if we talk about Pan Guys, ki how we got from Prince Pan to Pan Guys was just like our version of how we would like Pan to have in our modern day, जिसमें fusion है, जिसमें बहुत जैसे आपको चॉकलेट्स इतनी सारी आ गई, Ferrero Rocher आप ले लो, लाइक किट कैट, एंड उसके उसके जो इतने सारे जो फ्लेवर्स हैं जो आजकल पीपल लाइक टू हैव दैट, और उसका एक मॉडर्न टच है जिसमें पान के साथ उसको वी डिप इट इन द चॉकलेट, और उसके बाद फिर उसमें स्प्रिंकल विद चॉकलेट, और मतलब देयर आर लॉट ऑफ अदर वेरिएंट्स जो उसमें हमने करा था. वी मेड सुशी पान आल्सो just to just to give that feel, and it's something which my generation will really want to try, कि ये आज का आउटलुक है उस चीज के हिसाब से, एंड समथिंग जो अब वो अपने इस पैलेट के साथ फेमिलियर है, so they would like to want to have an experiment. So Pan Guys is that, and Prince Pan is of course at the classic end of the whole menu, and extra chutney is something that we wanted to start because सारे हम काफी enthusiastic हैं खाने को लेके, and North Indian food is something जो हमारे people relate to us with that, चाहे हमारे, क्योंकि हमारा even whatever we've done, we started with जो हमने street food start करा, that when we started, तो उसमें जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिला, एंड जिस तरीके से हमारे को लोगों ने अप्रिशिएट करा कि दिस इज समथिंग दैट हमारा जो फूड लाइन में हमारा जो होल्ड है in terms of how we get into it and how we penetrate that is something that people loved it. Then from there we started serving North Indian, just like snacks and everything, and it worked. So then we thought we really need to launch a brand for just North Indian all by itself, and that is how we started. And touchwood, even that picked up really well. Our Zomato and Swiggy sales were quite good. We literally we started doing break even on our third month of the launch, the very freshly launched brand. So extra chutney का भी अगर वो curve गया है तो growth का बहुत ही जल्दी that also picked up. So ये तीन brands तो definitely we can definitely see a lot of growth there as well. कैटरिंग में भी ऐसे है सर, कैटरिंग में भी ये है कि बेसिकली जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं उसमें जो अच्छी पार्टी हैं वो बिलीव करती हैं कि मैं किस ब्रांड से क्या काम करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारा आज की तारीख में जो कल्चर है, जो भी आदमी की फैमिली होती है इंडिया में, खासकर मुझे फॉरेन का तो पता नहीं, इंडिया में एक अपना घर और शादी कैसे करनी है, कुछ किसको बुलाना है, लोग 1-1 2-2 करोड़ पे शादी में खर्च करते हैं, वो काम 10 लाख में भी हो सकता है। तो वो बिलीव करते हैं अच्छी जगह शादी करें, अच्छा पान वाला हो, अच्छा कैटरर हो, अच्छा चाट वाला हो, उसकी प्रेजेंटेशन हो, अच्छा ब्रांड हो, और नेचुरली उसका फर्क भी पड़ता है, ठीक है ना जी। अब वो आप अगर आप नॉर्मल देखें, कोई जो बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं वो 50-50 60-60 लाख रुपए सिर्फ पंडाल के लेते हैं, क्योंकि वो इस ब्रांड का पंडाल है, इस लोकेशन पे ब्रांड है, नहीं तो वो भी करे। तो उसमें सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि भाई प्रिंस पान हो, प्रिंस चाट हो, या दूसरा डोमिनोज पिज्जा हो, या जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो उनको ब्रांड को बुलाते हैं। तो ये तो जरूरी चीज है, उसके उनको वहां पे वो चीज हाइजीन भी लगती है, साफ सुथरी भी लगती है, नहीं तो अदरवाइज तो कई पान वाले का स्टॉल लगे तो लोग बिना पान खाए निकल जाते हैं। हालांकि पान तो खाना चाहिए, पर वो देखते हैं कोई अच्छा ब्रांड नहीं है तो उसी तरह के नहीं कैसे दे रहा है कैसे नहीं दे रहा, लोग नहीं खाते। ये चीज का फर्क पड़ता है। अभी इन दिनों भी चाहे 50 आदमी 100 आदमी की पार्टी चल रही है, हमने लगातार की है, हमने रोज काम किया है डेली। ये नहीं कि 100 आदमी में लोग जनरली पानी लगवा रहे हैं,
100 आदमी में हमारे पान के स्टॉल लगे हैं, हमारा कैटरिंग का काम अभी भी हुआ है। हालांकि 100 आदमी में कुल आप सोचते हो अब मेरा कल की बुकिंग है, सिर्फ वहाँ 40 आदमी है, तब भी वो कह रहे हैं पान चाहिए जी। तो ये नहीं कि 40 आदमी 4 आदमी तुम्हारे हो जाएंगे, तब भी वो एडजस्ट कर रहे हैं। ज्यादा इंटेलिजेंस हो गई है क्योंकि कम लोगों में वो चाहते हैं कि और ज्यादा वो करें। अगर 4 आदमी तुम्हारे भी इंक्लूड होंगे तब भी वो कहेंगे पान तो चाहिए, प्रिंस पान के चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा उनको। ये तो बहुत अच्छी लेगेसी है आपकी बनी हुई, और ये तो यार बिल्कुल है। और पर्टिकुलरली दिल्ली में तो कोई अच्छी मैरिज होगी तो उनको तो प्रिंस पान नहीं चाहिए, उससे ही लोग पहचानते हैं, और हर आदमी पहचानता है, और हर आदमी पर्सनली पहचानता है कि ये कौन कहाँ पे है। तो इसमें 3 फॉर्मेट हैं जो प्रतीक ने बताया, मैं ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो प्रिंस पान है जो क्लासिक फॉर्मेट है, जो आप 150 स्क्वायर फीट में खोल सकते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी इंडिया के हर कोने में है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के हर जगह पे आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें पान है, इसमें पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, इसमें माउथ फ्रेशनर्स हैं, लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आल्सो व्हिच पीपल बाय। तो वो सारा कुछ आपको प्रिंस पान मिलता है। हम लोग इसके ऊपर और डीप में जाएंगे। सोने वो टेक अप क्वेश्चंस, और सोने इफ यू कैन इवन प्लान कि भी कैसे हमें सारे मेन्यूज और क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो कर और अगर आप देखना चाहें, दिल्ली में ऑलरेडी हमारे 3 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी चल भी रहे हैं प्रिंस पान के, वो 125-150 स्क्वायर फीट के अंदर ही चल रहे हैं, वो भी विजिट करके सकते के अंदर टिपिकली आप ऐसी जगह लें जहाँ पर रेस्टोरेंट एरियाज हों, या कोई ऐसे खाने पीने की क्लास 2 भी है, अब वो भी पूरा रेस्टोरेंट का बन गया है। ऐसे ही सारी मार्केट जो है, जैसे दिल्ली एनसीआर की पर्टिकुलर बात करें, और कहीं पर भी इंडिया के अंदर, अगर जयपुर में वैशाली की बात करें, या चंडीगढ़ में सेक्टर 8 सेक्टर 9 ये जो सेक्टर है, वहां पर बहुत सारे फूड के आउटलेट बन गए हैं। तो लखनऊ में गोमती नगर है, वहां पर बहुत सारे फूड के सारे बड़े रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। तो वहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, जैसे इनकी थी। इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो कॉर्नर पे थी, तो बेशक वो छोटी जगह है लेकिन विजिबिलिटी देती है, इजी देती है। बहुत सारे लोग गाड़ी में ही मंगवा लेते हैं। कई आजकल तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाहर नहीं जाते हैं, तो डिलीवरी भी अगर लड़का होता है तो वो डिलीवर कर देता है। दैट इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल व्हिच इज वेरी स्केलेबल। आई हैव नो डाउट दैट दिस मॉडल हैज नो ब्रेनर। इफ यू इंस्टॉल दैट एंटायर थिंग, इट्स इजी टू डू दैट। वी विल गो इनटू द ट्रेनिंग, क्या सपोर्ट मिलती है उस पर हम बाद में जाएंगे, बट पहले हम इसको फॉर्मेट समझ लें। दूसरा फॉर्मेट है जो है जिसके साथ हम चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। चार्ट एक बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि पान का एक टाइमिंग होता है ज्यादा लोगों को आने का, उस टाइम बहुत रश आ रहता है। लेकिन चार्ट आपका एक बहुत है, लेट इवनिंग से शाम के इवनिंग तक बहुत ज्यादा उसकी एक फोकस रहता है। तो चार्ट एक अनदर कॉम्प्लीमेंटिंग और ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा देता है आपके। और वी विल गो इनटू द मेन्यू ऑफ चार्ट आल्सो। एंड चार्ट के अंदर भी केटरिंग कॉम्प्लीमेंट करती है कि आपने शादी ली तो आप दोनों ले सकते हो, आप पान भी ले सकते हो और चार्ट भी ले सकते हो। थर्ड फॉर्मेट जो है पान गाइज लिटिल अपस्केल है। ये आइडल लोकेशन है कि आप अगर जैसे साइबर सिटी है, या ऐसी कोई लोकेशन है जहां पर बहुत सारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रीमियम कस्टमर्स हैं, प्रीमियम वो आते हैं, तो वहां पर यू कैन हैव अ स्मॉल पान गाइज। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चटनी है। एक्स्ट्रा चटनी के अंदर भी 2 फॉर्मेट है, क्यूएसआर फॉर्मेट है और एक प्योर डिलीवरी फॉर्मेट है, which is can be a dark kitchen kind of thing. In that also we can do a delivery of a pan. So they have created formats which you can permutation wise you can really build it anything from 150 square feet to about 600 square feet in different formats. So in the extra chutney particularly, let's focus on that. क्या मेन्यू रहता है प्रतीक, इसमें हम क्या मेन्यू ऑफर कर रहे हैं? So in extra chutney, there's a wide range of menu जिसके जो हम उसको cover कर रहे हैं, जिसमें starting from appetizers आप ले लो, we are very famous for this brand. I got a lot of limelight for vegetarian snack food. जो इसमें आप दही के कबाब हमारे they are very famous now. This is literally a highlight इस ब्रांड के साथ जो एसोसिएट होता है अभी इस टाइम में। एंड उसके अलावा जो सारे जो तंदूर से निकलती हैं चीजें, दैट फ्रॉम दो स्नैक्स टू मेन कोर्स आप लेंगे, बटर चिकन टू दाल मखनी, एंड वो पूरा का पूरा वो मेन्यू के अंदर एडेड है। एंड उसके बाद आप अगर आप क्या कहते हैं डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट्स आल्सो वी हैव गॉट इस टाइम पे लाइक वी गॉट गाजर का हलवा टू ऑल ऑफ दैट व्हिच आल्सो वर्क्स रियली वेल। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द मील पान इज समथिंग दैट we offers, तो वो पूरा का पूरा complete package बनता है, and people love that. It is a good North Indian offering, and North Indian offering is the largest demand on Swiggy's and Zomato platforms also. Today, very large demand.
and Yeah. it is complementing by a product which is Pan. Pan is a good top up. Even the largest of 5-star hotels actually used to in earlier days, now they don't allow it because security is another reason. But हर 5-star hotel के बाहर एक पान शॉप होती थी, वो इसलिए की जाती थी, सबको पता था कि this was a top up and was giving a higher margin Yeah. to the business. And Yeah. people used to end up going and putting 700 rupees, 1000 rupees for a pan outside and after a meal. So that's how this popularity is there, and it is very universal in across India. It's not that there's only one place, but it's very universal. But Delhi obviously has culturally the biggest heritage of Correct. this. So in the financial model, now I'll take one financial model and then I'll pass it on to Sonia to take balanced financial model to break up. जो प्रिंस पान है उसका ब्रेकअप ना 16 लाख रुपए का हमने बताया, तो 16 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए हमने फ्रेंचाइज फीस बोली और बाकी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था. तो इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जाता है, अभी क्या क्या इन्वेस्टमेंट जाएगा मतलब करने? इसमें सर स्टॉक हो गया, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, इंटीरियर हो गया, काउंटर्स हो गए, और अपना यही होता है 16 लाख में जाता है. 11-12 लाख रुपए लग जाते हैं इसमें, जिससे 5-6 लाख का स्टॉक होता है और 5 लाख रुपए फर्नीचर और अपने रेफ्रिजरेशन वगैरह में, पॉज सिस्टम में, इसमें लग जाता है. तो टेक्निकली इसमें अगर आप देखें तो 3 कंपोनेंट हैं 16 लाख रुपए में. एक है फ्रेंचाइज फीस जो वन टाइम फी है, उसके बाद आपका केपेक्स है. केपेक्स जो है वो 5 से 6 लाख रुपया है, जिसमें आपके रेफ्रिजरेटर हो गए और आपके इंटीरियर हो गए, और ओपेक्स है. ओपेक्स में आपका स्टॉक है. स्टॉक तो फास्ट मूविंग है तो वो तो आपका कंज्यूम हो जाएगा. तो टेक्निकली आप इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं 5-6 लाख रुपए इंटीरियर्स पे और 3 लाख 3.5 लाख रुपया 8-9-10 लाख रुपए की आपकी केपेक्स इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट है, लेकिन समझते नहीं है कि केपेक्स जो होता है वो आप बिजनेस में लगता है आपका, और जो ओपेक्स है वो तो आप रोटेट करते हैं इस वर्किंग कैपिटल पर. हाँ, तो आपका कई साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट 16 लाख है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है. 10 लाख, 9-10 लाख की वर्किंग कैपिटल का प्रोविजन रखना है, एंड दैट वर्किंग कैपिटल यू हैव टू फ्लोट दिस एंटायर थिंग. और दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. एक अच्छी शॉप की जिसके अंदर रेंटल हम समझे 1,50,000 रुपीज का, 150 स्क्वायर फीट का है, जिसका टॉप स्पॉट भी लेते हैं हम लोग, तो रेंटल आज की डेट में आज तो कम हो रखे हैं, लेकिन अच्छे दिनों के अंदर 200-250 फुट का भी रेंटल हो तो इट शुड 50-60 हजार रुपए का रेंटल में 50-60 से 70 50-60-70 हजार में प्राइम लोकेशन आपको मिल सकती है. ये मैं आई एम ऑन द हाईएस्ट एंटायर थिंग. 50 हजार का वो हो गया. कितना स्टाफ चाहिए होगा? 3 से 4 लड़के जी. 4 लड़के चाहिए, तो जिसका हम समझे 60,000 रुपया वो हो गया. 60,000 वो खर्चा हो गया. 10-15 हजार रुपया बिजली पानी का हो गया. 1,25,000 1,30,000 होगा. इसके अंदर फूड कॉस्ट और सेल क्या होगी? इसमें स्पॉन्सर मिल जाते हैं, आईटीसी हो या जीबीआई हो, मालबो कंपनी हो, तो वो भी 30 से लेके 50,000 तक अपना देते हैं मंथली. ये सारी कंपनीज आईटीसी का प्रोग्राम है जिसके अंदर 20,000 से लेकर 50,000 रुपए, और प्रिंस क्योंकि प्रीमियम पान शॉप है, जो प्रीमियम पान 50,000 रुपए तक वो देते हैं. हमें ज्यादा मिलते हैं. हम सब आउटलेट में जो नॉर्मल पान वाले को अगर वो 20,000 दे रहे हैं, हमें 50,000 देते हैं हमारे प्रिंस पान के ब्रांड के साथ. हाँ जी. तो इट इज 50,000 रुपीज काइंड ऑफ उनसे मिल जाता है आपका. तो कहीं ना कहीं आपका जो रेंटल है वो सेट ऑफ हो जाता है. बाहर से आपका बैलेंस जो आपका रहता है वो सिर्फ मैन पावर कॉस्ट रहती है. और अब अगर हम सेल की बात करें तो अच्छे स्पॉट की, जीके वन तो हिस्टोरिक है, उसकी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी. लेकिन अगर हम कोई और बात करें, जैसे पीतमपुरा में आपका आउटलेट है या कोई और जगह आउटलेट है, सेल इन दिनों चाहे आपका कोविड पीरियड भी चल रहा है, तो 15-20 हजार रुपए से सेल हमारी कहीं कम नहीं है. 15-20 हजार, वैसे 40 से 50 हजार रुपए की थी, पर इस टाइम में 15-20 हजार रुपए की सेल हमारी मिनिमम है हर आउटलेट में. जो अभी तो लोकेशन भी मान लूं तो मैं इसको सूरजमल विहार है, मेरी अभी भी 30-40,000 रोज की सेल जा रही है. अभी भी सरिता विहार में आउटलेट है, वो 15 से 20 हजार जा रही है इस टाइम में भी. प्रीत विहार है, 15 से 20 हजार जा रही है. जीके को आप छोड़ दो, जीके तो अलग ही बात हो गई, पर बाकी जगह भी 20 हजार रुपए की हमारी सेल अभी मेंटेन हो रही है. और हमें तो ये सोचना चाहिए कि कोविड ही जाएंगे, क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली कैटेगरी ऐसी है इसमें ये कोविड भी सर 3-4 महीने और है. जब तक आप कोई फ्रेंचाइजी लेगा बनाएगा, जब तो कोविड का पीरियड भी निकल जाएगा. कल वेरी गुड न्यूज है कि सारे स्टेट्स में फाइजर ने नहीं, कल क्राउड भी था मार्केट में काफी. कल से काफी मार्केट में क्राउड था. सैटरडे संडे हमारी मार्केट बिल्कुल फुल थी. मैं कल एक रेस्टोरेंट में गया, पूरा एक भी सीट भी खाली नहीं थी. आधे घंटे की वेटिंग थी वहां पे. मतलब कल परसों से निकलना शुरू हो गया है. बिल्कुल. मैं फिजिकल सेमिनार करने गया था कल,
तो ये मैंने कोविड के बाद पहला किया, क्योंकि और मैंने 50 की गारंटी दे सकते थे, होटल के अंदर रेडिसन के अंदर रखा था, तो 50 ही लोग आ सकते थे, तो 55 लोग आए, तो 5 लोग बेचारे खड़े, उन्होंने बोला कुर्सी लगा नहीं सकते, मैंने कहा नहीं, अब कोई नहीं आ रहा देखने के लिए तुम्हारे को, तो तुम ये अपनी नहीं, हम लोगों ने निकलना शुरू कर दिया सर, लोग बैठे बैठे थक गए हैं बहुत। तो हमने बुलाए 50 थे, लेकिन वो कोई अपने साथ ले आता है किसी को कोई करने के लिए, तो 55 हालांकि लोग। यही अगर आप 2 महीने पहले करते ना, 50 बातें 25 आते, यानी कि अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं। मेरा कहने मतलब ये है कि वापस अब लोग आने हो गए। बिल्कुल, हाँ जी, एब्सोल्युटली, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, दिस इज अ गुड टाइमिंग, इज अ टिपिंग पॉइंट for people to really open up faster enough, because as the markets have gone down and touched bottom, they would equally come fast back. So that's human cycles. 100% सही होगा, 100% सही होगा। ये होगा, तो आज अगर हम 30,000 की एवरेज भी लें तो 9 लाख रुपए की, इसमें फूड कॉस्ट क्या आती है एक टिपिकली इसमें? सर अगर मैं टोटल मार्जिन लगाऊं तो 40% तो हमारा कहीं नहीं गया, क्योंकि पान है उसमें हमें 70-80% मिलता है, सिगरेट में हमें 10-12% मिलता है, बेवरेजेस जो कोक वगैरह वो 10-12%, पर जो हम खुद बना के देते हैं अगेन वही 70% मार्जिन आता है, तो ओवरऑल सेल में हम 40% निकाल लेते हैं। 40% सेल है, तो अगर आप 8-9 लाख रुपए की सेल भी कर रहे हैं, तो आपका ग्रॉस मार्जिन 3-3.5 लाख 35 रुपए से का 40% 100% आ जाता है, 100%। डाल लें और बाकी वो कर लें, तो आप 2-2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। हाँ। ऐसा बिजनेस 10 लाख का केपेक्स है, 2 लाख रुपए भी अगर आप मंथली कमा रहे हैं, तो आप हाँ। 5-6 महीने में अपना केपेक्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल, और जिसमें रेंट आपको ऑलमोस्ट आईटीसी या जीबीआई कोई भी कंपनी आपको दे देती है। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डीप जाके देखें, तो कई बार हम लोग कुछ फॉर्मेट्स को बहुत डीप देखते नहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छी बात इसमें ये लगती है कि ये स्टिल फूड बिजनेस है, स्टिल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें आपका जो बैक ऑफ द हाउस नहीं है। नहीं तो बाकी बिजनेसेस में बैक ऑफ द हाउस की बहुत वैल्यू होती है, पीछे एक शेफ रखने पड़ते हैं, ये रखने पड़ते हैं, बेशक आप सेल कितनी करते हैं, लेकिन आपके कॉस्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़ जाता है। इसमें सिर्फ आप असेंबली स्टॉक डंपेज बहुत है सर। अगर आप रेडीमेड का काम करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें आपका इसका लॉट, सारा माल खराब है, लॉट में बेचना पड़ता है, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। इसमें तो आपका आएगा, बिकता रहेगा, कुछ ही नहीं, थोड़ा रुक भी जाता है, कंपनी चेंज कर देती है, ऐसा इशू नहीं है। It is a very, very interesting opportunity, and it is a good, but spot has to be looked at. Good spots, one has to really find out and make sure that you are getting the good spot. And if you are interested in a particular city and a location, please go on a Q&A box and share that. We will take up that location also. I think I'll now like to invite Sonia would you to take a few questions, and even we can go into depth of the matter. Thank you so much, Yashi and Prateek ji. I'll take some questions. I was going through a lot of questions which our viewers have asked. एक जो मैं पूछना चाहूंगी, because we have covered pan guys, we have covered on the chart, जो extra चटनी है typical, जो इसमें हमारा जो format है, हमने 3 formats की जो बात की है, इसमें हमारा royalty structure क्या रहेगा, and are we also taking royalty for the other 2 formats, pan guys and also chart? I didn't see a mention of that. तो उसमें typical royalty हमारी कितनी रहती है, fixed amount है हमारा, या हम एक variable percent? सब रेट्स में ही है जी, रॉयल्टी सब में ही है, 3 से 3.5 लाख सब में ही है रॉयल्टी। अच्छा, that's a fixed amount, 3 हाँ जी, रॉयल्टी है सब। And क्या रहेगा यश जी, मैं I could not hear. How much is the royalty आप charging? 3.5 है एक्स्ट्रा चटनी में भी सेम। 3.5. हाँ जी। Okay. And I also, because we have a lot of people from Delhi, and most of the people from Delhi have been to your outlet, and obviously they know you and the legacy. And I have somebody, he's one of my advisors at Franchise India, and he wants to know, because he's seen one outlet in Pitampura and also experienced some other locations. He wants to know what should be the ideal distance between the 2 locations जो आप रखेंगे। 4 to 5 kilometers minimum। 4 to 5 का रहेगा। और इसमें अगर हम कुजीन की बात करें, एक्स्ट्रा चटनी वेजिटेरियन है, इज इट वेजिटेरियन? और नॉन वेजिटेरियन टू। No. Both. Is there an option to have a vegetarian also? Is the question. Sorry. वेजिटेरियन का ऑप्शन में Veg का, is there an option to keep only vegetarian menu in chart obviously is vegetarian. इसमें एक्स्ट्रा चटनी का पूछना चाह रहे हैं। Yeah, sure. In fact, we can definitely do that, because जो जितना अभी हमने स्टार्ट करा है, we are gaining more vegetarian items in the menu, I think, and it is a larger market, no doubt about नहीं, that. चाट के साथ जहाँ भी करेंगे वेज ही करेंगे, उसके साथ नॉनवेज नहीं करेंगे। हाँ जी। इवन पान के साथ भी हम नॉनवेज नहीं करते,
क्योंकि जो हमारा पान का क्लाइंटेज है ज्यादातर मारवाड़ी, बनिया, अग्रवाल, ज्यादातर वो हमारे क्लाइंटेज हैं। तो उसकी वजह से हम पान के साथ चाट रखते हैं, एक्स्ट्रा चटनी रखते भी नहीं है। एक्स्ट्रा चटनी जो रखेगा वहाँ पान और चाट नहीं रहेगा। अगर पान चाट के साथ एक्स्ट्रा चटनी रखा तो प्योर वेज ही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर वो कस्टमर स्मेल से भी कस्टमर नहीं आता। हमारे जीके आउटलेट में भी नॉनवेज नहीं है, करेक्ट, दाल है, पान है या कुछ एक्स्ट्रा चटनी है, वही वेज है, वही वेजिटेरियन है। उसको हमने अलग रखा हुआ है। ओके जी। एक जो आपने वी वर टॉकिंग अबाउट केटरिंग बिजनेस एंड बिकॉज आपका दिल्ली में ऑलरेडी बहुत बड़ा केटरिंग बिजनेस है, अगर कोई फ्रेंचाइजी अगर आता है सो डज ही गेट एनी एडवांटेज ऑफ केटरिंग हाँ बिजनेस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी फ्रेंचाइज आउटलेट में वो बुकिंग करते हैं, जो अभी करते हैं, उसमें हाँ जो जी, बिलिंग अमाउंट होता है, कैटरिंग हम मैनेज करेंगे सारी। हम Okay. 10% उनको देंगे जो जो वो बुक करके देंगे। सपोज ओके, उन्होंने 50,000 रुपए का हमें काम बुक करके दिया तो 5,000 उनको बिना मेहनत के मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बुकिंग कराई है। ओके, सब कुछ हम मैनेज करेंगे, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो बुकिंग देंगे, 10% हमसे लेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और इसमें अनदर क्वेश्चन व्हिच आई एम सीइंग इज हमारा टिपिकल प्राइस रेंज क्या रहता है एक्स्ट्रा चटनी में? हमने चाट का तो देखा था, पान आई थिंक इज 50 रुपीज टू 1001 रुपीज आपका चाट का प्राइसिंग है। इसमें चाट का और एक्स्ट्रा चटनी का टिपिकल हमारा एवरेज प्राइसिंग क्या रहता है? चाट में हमारा 40 रुपए से स्टार्ट है जी। गोलगप्पा मिनिमम आइटम 40 से स्टार्ट है और 140 तक की आइटम है पालक चाट। ओके, एंड एक्स्ट्रा चटनी में क्या हमारा प्राइस रेंज रहेगा? क्या रेट है बेटा? एक्स्ट्रा चटनी स्टार्ट्स फ्रॉम 160 रुपीज से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है फॉर जो आपके पनीर रोल से लेके जो सारे रोल्स आते हैं उसे लेके इट गोज फिर यू नो वी सर्व फिश एज वेल, प्रॉन्स एज वेल, सो इतना डाइवर्सिफाइड, 800 तक है आपका। इतना डाइवर्सिफाइड मेन्यू है, तो वो 800 तक चले जाते हैं। हाँ जी। अगर हम एवरेज टिकट प्राइस की बात करें पर पर्सन कितना आता है हमारा एक्स्ट्रा चटनी में? I would say extra chutney के लिए average ticket size would be 250 per person. और चाट में 100 रुपीज है around। कौन सी लोकेशंस पे हम देख रहे हैं? बिकॉज आई एम सीइंग इंक्वायरी, जैसे इंदौर से है, पुणे है, दिल्ली इज नो ब्रेनर, दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी खोलेंगे, बट हम इसके अलावा और भी ऑप्शंस देख रहे हैं लोकेशंस के जहाँ पे हम रीच आउट करना चाहते हैं। अगर छोटा फॉर्मेट भी खोलना है चाट का या पान का, वो वाइबल बाहर दूसरे स्टेट्स में हम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हर जगह आस्था पॉजिटिव बात है। इंदौर तो अच्छी मार्केट है, इंदौर में तो खाने पीने के शौकीन है, उसमें वहाँ तो आप बिल्कुल अच्छी ऑप्शन मिलेगी। बॉम्बे हम दे सकते हैं, हैदराबाद दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में भी अभी काफी स्पेस खाली पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ हम साउथ दिल्ली कर रहे हैं और अपना वेस्ट कर रहे हैं, ईस्ट हमारा खाली है, नॉर्थ भी हमारा खाली है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। I think the model जो simplicity है मॉडल की, वो आप कहीं पे भी लेके चले जाएंगे, it's something that will work. In fact हमारे बाहर थाईलैंड के अंदर भी outlets हैं which are doing phenomenally well. So it's just it's very simple and ज़्यादा वो नहीं है, इसमें complications नहीं है, and financially it's something which is कि people once they get to know, फिर वही फ्रेंचाइजी हमें और इधर उधर से वो ही लोग लेते रहते हैं, is that. अब जो सूरजमल विहार फ्रेंचाइजी है, उन्होंने ही सरिता विहार फ्रेंचाइजी की है। जब उनको 3-4 साल में उसमें कमाया, जब भी तो उन्होंने सरिता विहार में किया। वो खुद ही चाहते हैं कि आप ना किसी को तो हमें से कम से करो, पर हम चाहते हैं नहीं, कुछ लोग नए भी ढूंढने चाहिए। सारा काम अगर एक को मिल जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे दूसरा बंदा कैसे उससे अच्छा काम कर सकता नहीं कर सकता, तो इसलिए हम चेंज चाहते हैं। हालांकि सरिता विहार वाला ही कह रहे हैं कि मुझे 2 और आउटलेट दे दो, हम उसको नहीं दे रहे अभी। Okay. Rishi, a question I'll take, which is again from one of our advisors, he's Mr. Gagan. He saw in your presentation, vision में हमने mention किया था that you're willing to even bring small vendors under your umbrella. So how will this model work? इसमें is there some different business model for this? ये it's a vision that we had जिसमें all of these small time vendors which जो ये roadside जो vendors है, we thought of in a way helping them out with जो जैसे हम अपना कुछ एक ब्रांड नेम दे के उनके SOP सेट करके और उनका जो सारी जो चीजें जो रनिंग होती है वो करके हेल्प करके बेसिकली अपने and like give them a fixed thing, something like that, जिसके अंदर we can expand this, जो हमने एक आधे यहाँ पे GK में करे थे as a test run which was doing pretty well, and then we thought इसको
agar scale kara jaye, that is also a very good model. Just like, if I'm allowed to take a brand name like Oyo of hotels, like, so sort of like that for Prince Pan. That's one of the vision that we had. Absolutely. I'll take one question. He's Mr. Muneet Singh. He wants to understand the kind of locations and the property one should look at, because abhi jo properties hai, mostly these are corner properties. GK bhi dekhe aap, GK 1 and 2. These are both corner properties. So he wishes to understand, wo necessary hai to have a property like that, which has to be in the prime market, or it can also be a shop which is a side shop as well. थोड़ा प्राइम मार्केट ही सूट करेगा, क्योंकि जब हम आईटीसी करा या कोई भी स्पॉन्सर देता है, वो प्राइम मार्केट देख के ही हमें पैसे देंगे. कोई जिस जगह पे हमारा क्लाइंटेज नहीं है, जो बिल्कुल ही लो लोग हैं, वो तो हमारा 100 रुपए का 50 रुपए पान नहीं खा सकते. तो कहीं ना कहीं मार्केट तो चाहिए, मार्केट चाहिए, या अच्छी मार्केट के साथ कोई लोकेशन मिल जाए, बाकी मिल जाए, ठीक है. बाकी बिल्कुल सी क्लास लोकेशन में जा सकते हैं हम लोग. Right. And इसमें कितना तक का कवर कर लेता है ITC? Do they cover the entire rentals or they do some part of that? 50% आई थिंक 100% हो जाता है. 50% तो हो ही जाता है. अगर 80,000 तक आप रेंट में कोई दे रहे हैं, तो 40 to 50,000 आईटीसी दे देता है. Okay. And if कई बार लोकेशन, जैसे कई बार हम आईटीसी से पूछ सकते हैं कि जी अब आपको किस लोकेशन में खोलना है, तो वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है जी, इस एरिया में हमारा कोई नहीं है, तो आप उधर कोई दुकान देख लीजिए. तो जैसे आजकल वो हमें दिल्ली में मॉडल टाउन और यूनिवर्सिटी के एरिया में कह रहे हैं कि सब फ्रेंचाइज आउटलेट वहाँ खोल दो, तो नेचुरली अगर वो कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमें 10-20,000 फालतू दे सकते हैं. यशीश से आपने मॉडल टाउन बताओ, इतने कितने स्पॉट्स होंगे दिल्ली में जो आपको लगता है आज के डेट में पोटेंशियल है एंड जहाँ पे आईटीसी देखना चाहता है? मेरे को लगता है दिल्ली के लोग जरूर इन लोकेशंस को मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ, पर वैसे भी थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी एरिया के आसपास जो ये नॉर्थ कैंपस है, इतने उसमें उनकी बहुत ज्यादा वो है रिक्वायरमेंट की इस जगह को हमें और फीड करना है, यहाँ पे कम है हमारा आउटलेट. तो जैसे आप वो कह रहे हैं, हमारा भी उस साइड में नहीं है, तो वो भी, और अगर कोई इन्वेस्टर कहेगा तो मैं पूछ के बता भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. ओके. एंड एक और क्वेश्चन है व्हिच इज फ्रॉम मिस्टर वीरल. ही विशेस टू अंडरस्टैंड, अगर जो हमारा सप्लाई है या मटेरियल है जो हम सप्लाई करते हैं, उसको कितना टाइम लगता है जाने में? दिल्ली के अंदर दिल्ली के बाहर टिपिकली क्या टाइम फ्रेम होता है? दिल्ली के अंदर तो जो आज रात को जैसे रिक्वायरमेंट जो भी वहाँ स्टोर में रहेगा मैनेजर, वो आज रात को रिक्वायरमेंट देगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंच जाएगा. ऐसे ही दिल्ली बाहर वाला भी रात को रिक्वायरमेंट देगा, तो उसमें जो शिपिंग में टाइम लगेगा हम तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्पैच कर ही देंगे. एंड जहाँ पे हम क्लाउड किचन की डिलीवरी फॉर्मेट एक्स्ट्रा चटनी की बात करते हैं, इसमें जो भी हमारा प्रोड्यूस है अभी सेंट्रलाइज्ड किचन है दिल्ली में, हम सप्लाई करते हैं बाहर, इज देयर अ रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी? हाउ डू इट? We've got a base central kitchen, and from there ये सारे clouds में that is how it goes, so that we maintain a certain taste. आप कहीं से भी वो लोगे तो वो टेस्ट मेंटेन रहता है, क्योंकि सेंट्रली वो वहीं पे बनता है, एंड देन वो तो हर जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है चीजें. सो मैरिनेशन और करी वगैरह तो आपको बेस किचन से लेनी पड़ेगी. हाँ जी. Great. And okay, I'm seeing many other questions also. I think we have again a question from Gaganji. He wishes to know if somebody is already running an outlet, can we also integrate this model with an existing outlet? I think Gaganji, we need to see कौन से location पे outlet है, क्या business को run कर रहे हैं, अगर compatible होगा और market अगर relevant होगी, we can choose maybe a location, but that needs a little bit of understanding on the property, where it is and what business it is running. We have Mr. Abhi from Pune. He's looking for Pune, and Pune is also open for us, Abhi. And I will request all our audience friends, if you have any questions, kindly reach on our hotline number. We have Yashi and Prateek ji who are available. Maybe in this coming week, we can take up your calls one-to-one with them. And you also need to mention what model you're keen in, which location. If you already have a property or existing business that you operate, agar aap integrate karna chahte hain, we would need location details. And anyone in Delhi, I'm sure everybody in Delhi would know Prince Pan. We've grown up going to your outlet in GK1. But anyone who wishes to visit even the new format of Pan Guys, they can do that in locations like GK and also Pitampura and few other locations which you mentioned. And I will request friends kindly reach on the hotline number. We have put that on our chat box, and we look forward to getting your call done with Prateek ji and Yash ji. And before we close, any last words, sir, from you to the audience who is listening on the webinar and also live?
And Gagan has asked a very good point that highway locations are also very interesting. Some are very highway locations, especially this new infrastructure between Delhi, Chandigarh, Delhi, Jaipur. These are locations which have very high traffics. And some locations can do phenomenal work. I mean, you can do even a sale of a, say, 75 to 1 lakh rupee per day. If you are a right spot at Delhi, Chandigarh or Delhi, Jaipur, kind of, or Delhi, Agra, these kind of locations which are there. But you need to be on the top spot. There are some clusters which have been made already in these locations, which are where you have either the large, very well done, these Havelis, they call it, or places like that. They give you spots on that. Or even some modern outlets, which are McDonald's, KFC, and other places. There also you can do this space. So, interesting opportunity. Anything which you want to really comment, Yashji, Prateek, anything which you want to say to our audience? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 15 से 20 लाख में इससे बड़ी ऑप्शन किसी के पास कुछ नहीं मिल सकती, जिसमें आपको 100%, 1 लाख 1.5 लाख का तो 100% प्रॉफिट नजर आएगा ही आएगा। इसमें मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और अभी भी हम थोड़ा और महीने 2 महीने के अंदर कोई बेवरेजेस में प्रोडक्ट ऐसे लाने वाले हैं जो आपको नींबू लेमन वगैरह जो हम पैकेज में लाएंगे, वो आजकल अगर आप कोविड के टाइम देखो, लोगों ने जीरा ड्रिंक ज़्यादा लाइक किया, नींबू की ड्रिंक ज़्यादा लाइक की। ये सब चीज़ें हम और 2 महीने बना देंगे, तो आपको वो भी ऑप्शन समझ काफ़ी मिलेंगे हमारे यहाँ से भी। Very good. It's a complete integrated supply chain of food which is coming through. And to be very honest, it's the whole model. Once you go further deep, it's profitable. That is eventually what you need, and that is why people do come back to us for further and further franchisees, because that is at the end of the day the prime goal. With like we are happy, and the whomsoever got associated with us, they are also happy. So it's a very profitable and a very simple, scalable model. Absolutely, and I second you. This is a very good, and people should look at stable opportunity. This is very stable opportunity. This is staple product, a strong brand which has over 5 decades of history, and a good product line, high margin business. ये सब चीजें इसमें हैं, लेकिन right spot ढूंढिए और थोड़ा सुपरवाइज करिए अपने बिजनेस को। 5-6 महीने दीजिए स्टेबल होने के लिए। जब वो स्टेबल हो जाएगा, दिस वुड बी बिल्कुल आने वाले टाइम में आपको वो देगा। So thank you, Yash ji. Thank you, Prateek, for coming over for Thank you everyone. and Sonia, and then to Archana. Over to you, Archana. Thank you so much, Yashji. Thank you so much, Prateek, for joining in today and explain your business model to each and every attendees who have joined us today. We would like to thank our panel member, our dear participants who have joined us today. Hope we try to give you information. Still, if you want to connect with us, please connect with us at our business hotline number, which is 97176 83838. That's the number where you can book your slot for having a one-to-one discussion with Yashi and Prateek. At the same business hotline number, we encourage and invite all your suggestions and feedback. Do connect with us at our different social handles, information on your screen. You want to watch this particular webinar and all the previously done brands representation, brands webinar, please go to Facebook page of Franchise India Brands Limited. The recorded versions are available there. You can connect with management team of Franchise India at their respective LinkedIn IDs. And tomorrow we are inviting you to witness another great brand. Gelato Italiano is the brand we are presenting you tomorrow under 119th edition of Business Opportunity Over Chai series. This is the brand which is currently present in 12 cities with 60 plus outlets. And tomorrow they are coming and digitally presenting their business idea for each one of you. So please do not miss this chance. Do registration today at the same business hotline number so that you can join us tomorrow sharp 12 p.m. Thank you so much once again for joining in today. Have a great day ahead. Keep very good care of yourself. Thank you so much. Thank you, friends.